روز نئے نئے بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں، جیسے میں کوئی بیان اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، میں تھوڑے دن پہلے مجھے گجرات یونیورسٹی کے کچھ طالب علموں نے دعوت دی، کچھ اساتذہ نے کہا کہ یہاں سیرت سیمینار ہے، آپ آئیں۔ سیالکوٹ میں جو کیمپس ہے، میں وہاں جب پہنچا تو میں نے کہا یار یہ صرف لڑکے ہونے چاہیے۔ کہنے لگے اتنے بولے مولوی تقریر کرتے ہیں لڑکیوں میں، تو آپ تو میں نے کہا یار مجھے دکھیا نور سمجھ لو، میں پرانے خیالات کا ہوں، اور ویسے بھی میرے لیے مولوی حجت نہیں، میرے لیے رسول اللہ کا دین حجت ہے، تو آپ پردہ کرائیں۔ خیر انہوں نے مہربانی کی، کوئی پارٹیشن ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو شاید 1.5 منٹ لگا ہو مجھے گیٹ سے ہال میں جانے تک، لیکن وہاں جو بچے اور بچیوں کا میں نے حال دیکھا تو میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ تو اس قوم پہ فضل فرما، اس قوم پہ۔ ابا جی کہتے مجھے اعتماد ہے، نابینا سے ابھی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، وہ آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو، تیرے گھر میں بسنے والی بی بی سید عائشہ سے بھی پاک ہے، تیری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ پردہ کرو، حضور وہ نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تیرا اعتبار یہاں سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا حضور ہمیں قرآن شریف پڑھا دیں، آپ نے فرمایا درمیان میں عورتیں پردہ ڈالیں پھر پڑھاؤں گا۔ کہا حضور قرآن پاک ہی پڑھانا ہے؟ تو حضرت جنید فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور درمیان میں قرآن پڑھا ہو، پھر بھی میں انہیں بغیر پردے کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، اس گند کو روز پرموٹ کرتے ہو، نوجوانوں کے جذبات بکھرتے ہیں اور بکھرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ آگ نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ او بھائی یاد رکھو، جب تک یہ گند رہے گا فحاشی اور عریانی رہے گی۔ انڈیا کے اندر زیادتی کے واقعات زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، کیوں؟ اس لیے کہ گند زیادہ ہے، فحاشی اور عریانی۔ اسلام نے تو نظر تک پر پابندی لگا دی، کہا اپنی نظر بھی مومن جھکا کے رکھے، جو چیزیں سبب بن سکتی ہیں ان پر بھی پابندی لگا کے رکھی۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں ہے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی، مجرم کو سزا، بولیے وہ چھوٹ گیا نا سرے عام، ایک بڑے آدمی کا بیٹا قتل کرنے والا چھوٹ گیا نا، وہ جس نے سرے عام ایک سپاہی کانسٹیبل کو کچل دیا تھا، وہ بچ گیا نا، آ گیا نا باہر۔ ریمنڈ ڈیوس کئی گولیاں مار کے بچ گیا نا۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی تو پھر گناہ بند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قانون، ایک عورت نے چوری کی، اس کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید حضور کے محبوب صحابی سفارشی بن کے آئے، حضور تھوڑی لچک دے دیں۔ نبی پاک نے فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام پھانسی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ کہ سو گئے؟ جی چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی دو تو کہنے لگے آئین میں گنجائش نہیں چوک میں پھانسی دینے کی، اور تمہاری ضرورت پڑے تو آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے۔ تو آج زینب کو ضرورت پڑی ہے تو کیوں ترمیم نہیں ہو سکتی؟ آج ایک غریب مظلوم ماں کو ضرورت پڑی ہے تو ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہیں چوک میں پھانسی دو، انہیں لٹکاؤ، انہیں کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالو تاکہ ہر ایک کی بیٹی محفوظ رہ سکے۔ اور وہ زینب کسی اور کی بیٹی نہیں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ کبھی 6 سال کی بیٹی سینے پہ لٹا نا اور پھر اس باپ کا درد محسوس کر، مجھے اندازہ ہو کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی ننگے سر دربار رسالت پہ آئی تو میرے نبی پاک نے چادر دی،
सलमान फारसी कहने लगे, सोनिया काफर की बेटी है, तेरी पाक चादर है, मैं अपनी ना दे दूं? तो हुजूर ने फरमाया, सलमान चुप कर जा, बेटियां सांझी होती, बेटियां सांझी होती हैं, चुप कर। काफिर की बेटी सही, बेटी तो है ना, और बेटियां तो सांझी होती हैं। यहाँ इतना जुल्म और इतना हशर हो गया, और कहते हैं पता नहीं चला। देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं। याद रखो, जुल्म कभी मिटा नहीं करता, जुल्म कभी। इसलिए ज़ैनब भाई, ज़ैनब तो मेरी बेटी है, ज़ैनब तो तेरी बेटी है, ज़ैनब तो उम्मत की बेटी है, ज़ैनब तो पाकिस्तान की बेटी है, ज़ैनब तो हर उस शख्स की बेटी है जो किसी भी बच्ची का बाप है, जो किसी भी बच्चे का बाप है। वो मिल्लत की बेटी है, इसलिए वो दुख किसी एक का नहीं, वो सब का बराबर का है। बस याद रखो, इस मुआशरे में पहली बात ये, इस गंद पे, बेहयाई पे कंट्रोल। दूसरी बात ये, तदारुक अर्ज कर रहा हूँ, मुजरिम को सजा मिले। अगर पुराने मुजरिमों को सजा मिलती तो कभी भी दोबारा जुर्म की किसी को हिम्मत। हजरत उमर के जमाने में जुर्म क्यों बंद हुए थे? वो इसलिए कि वो सरेआम कोड़े मारते थे, उनका दुर्रा लटकता था, वो किसी को गुंजाइश नहीं देते, किसी को गुंजाइश। गवर्नर का बेटा भी ज्यादती करता तो चौक में खड़े होकर दुर्रे मारते। फरमाते, लोगों की माओ ने उन्हें आजाद पैदा किया, तुमने कैसे गुलाम बन लिया? यहाँ जब कानून बदलता है, और फिर शिकवा है, हमें गरीब आदमी ने तो पर्चा दर्ज कराना हो तो उसको तो चौधरी साहब भी वक़्त नहीं देते, उसको तो चौधरी साहब भी कहते हैं गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं थाने जाने दे, उत्थे पैसे लगते हैं। जालिमों, डरो अल्लाह ताला से, डरो। और गरीब आदमी चला जाए थाने तो उसको पुलिस वाला पूछता है, वो कहता है किस तरह हुआ था, किस तरह करके हुआ, तफसील बता। और फिर वो दो कहता है, तू जा, अभी मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले उनको फोन करता हूँ मुजरिमों को, फिर उसके बाद तेरा। और तगड़े आदमी पे दरखास्त आ जाए कभी, उसको फोन करके पूछते हैं, चौधरी साहब की करना है पर्चे दा? फिर वो खुद फोन करते हो। ये अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और है, ये किस तरह हो सकता है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की फराहमी छोटे बड़े के लिए एक रखी। और याद रखो, हिसाब तो देना है। हिसाब बोल के बताइए, हिसाब जो ज्यादती करेगा उसने हिसाब और देना पड़ेगा। यहाँ नहीं दोगे तो वहां दोगे, हिसाब तो बहरहाल उस मुजरिम ने तो देना है। लेकिन अरबाब इख्तदार ने भी, हजरत उमर फरमाया करते थे, मेरे दौर में कुत्ता भी प्यासा मर गया तो हिसाब मैंने देना है, क्योंकि मेरी हुकूमत थी, कुत्ते को पानी मिलना चाहिए था, उसके दरवाजे तक पानी पहुंचना चाहिए था। हिसाब तो देना है। हर उस शख्स ने जो सोशल होने का दावा करता है, जो मुआशरे में किसी भी तरह का कोई किरदार अदा कर रहा है, उसने बहरहाल हिसाब, ये मुश्तरका मामला है, इसमें अरबाब इख्तदार का तो अशर होगा, वो तो दुनिया देखेगी, लेकिन बाकी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, बाकी भी ख्याल करें। सुनो और याद रखना इस बात को, गौर करें। क्या मेरी तरफ देखे मेरे भाई, एक मकरान शाह बादशाह गुजरा है ईरान का, कुछ नरम दिल था। वो ना सैर करने निकला, दरमियान में पुल आता था, एक दरिया था, उसका पुल था, और पुल के उस पार जंगल था, सब्जा था, सैरगाहें बनी हुई थी। बादशाह वहां 2-4 दिन रहने का इरादा किया। जब बादशाह वहां पहुंचता है ना, मकरान शाह, तो उसने देखा कि वहां 2-3 दिन क़याम करना है, झील है, सैरगाह है, वहां उसने रुकने का प्रोग्राम बना लिया। बादशाह तो अलहदा उसके लिए रिहाइश थी, सिपाही अलहदा रहते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं ना, वो पुलिस को डांटते हैं, पुलिस को पूछते हैं, ओ भाई पुलिस तो तुम्हारे मतहत होती है, पुलिस तो समझ गई है कि तुम किस तरह उनसे काम लेते हो, उनको तो तुम अपने तहत रखते हो। पुलिस वाले अलहदा रहते थे, उसके साथ जो सिपाही गए हुए थे, गनमैन गए हुए थे। मकरान शाह सैर सपाटे पे रहता था। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक गाय थी, वो जंगल के अंदर बूढ़ी रहती थी, गाय उसकी वहां चरती रहती थी। शाम को वो गाय घर लौटती, बूढ़ी दूध पी के सो जाती। सिपाही उस बूढ़ी के पास आए, कहने लगे तेरी गाय बड़ी सेहतमंद है, हमारे हाथ बेच दे। बूढ़ी ने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसका दूध पी के मैं जिंदा हूं, बेचूंगी नहीं। वही वाला काम जो हमारे मुल्क में होता है कि कीमत के साथ जमीन देनी है कि मुफ्त देनी है। जब बड़े आदमी को पसंद आ जाती है तो कहते हैं मोल देनी है कि मुफ्त देनी है, देनी पड़ती है, गरीब है, क्या करें, मजबूर है, मजलूम है। कहा बूढ़ी औरत से सिपाहियों ने बेच दे, कहा नहीं, कहने लगे नहीं बेचेगी तो हम ले लेंगे। उस औरत की गाय जबरदस्ती सिपाही जिबा करके खा गए।
बूढ़ी ने बादशाह तक पहुंचना चाहा, लेकिन उसको पहुंचने न दिया गया, मना कर दिया गया। उसकी रसाई ना हो सकी, गरीब औरत थी। जिस दिन मकरान शाह वापस आ रहे थे ना, सैर करके पुल से गुजर रहे थे, तो किसी ने बूढ़ी से कहा कि बादशाह गुजरेगा। वो छुप के पुल पे बैठ गई, और मकरान शाह जब पुल से गुजरने लगे तो बूढ़ी आगे आई और उसके घोड़े की लगाम पकड़ी। ऐसा जुमला कहा कि मकरान शाह चकरा के जमीन पे गिरा। और बूढ़ी कहने लगी, मकरान शाह, तेरे सिपाही मेरी गाय ज़िबा करके खा गए हैं, तू बता उसका हिसाब इस पुल पे खड़े होके देना कि पुल सिरात पे देना है? बता, यहां खड़े होके देगा कि वहां खड़े होके देगा? बोल। अरबाबे इक्तदार, हुकूमत के वानों में बैठने वालों, बताओ ज़ैनब का हिसाब कसूर के चौक में खड़े होके दोगे कि मैदान महशर के चौक में खड़े होके दोगे? बताओ कहां हिसाब देना है, यहां देना है कि वहां देना है? हिसाब तो बहरहाल तुम्हें देना है। इस कौम को उसका हिसाब तो, ज़ैनब का हिसाब तो देना है, देना पड़ेगा, दिया जाएगा, पूछा जाएगा। बताओ यहां देना है कि वहां देना है? देना तो पड़ेगा। यहां दोगे तो हो सकता है कयामत में बच जाओ, और अगर यहां नहीं दोगे तो वहां लटका दिए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, पूछा जाएगा। मकरान शाह चकरा के गिरा जमीन पे और गिर के कहने लगा, बीबी मैं वहां हिसाब नहीं दे सकता, दो देना यहीं ले ले, जो लेना यहीं ले ले। आ जाओ, वक्त है, गुंजाइश है, मोहलत के दिनों में तौबा कर लो, पलट आओ, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। इस मुआशरे को सफाई की जरूरत पड़ गई है। इस मुआशरे में हर आदमी अपना किरदार अदा करे, जालिम के खिलाफ उठे, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, बदनिगाही, इसके खिलाफ उठे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में बाहर निकले। एक बीबी बेपर्दा, बापर्दा औरत बुरके में गली में घूम रही थी, बुरका डाल के। हजरत अमीर मुआविया दौड़ के मस्जिद चले गए, रोने लगे, कहने लगे, सहाबा के जमाने में ये औरतें गली में आ गई हैं, हमारे दौर में ही आ गई हैं, कहीं अल्लाह का कहर नाजिल ना हो जाए। हालांकि वो बापर्दा थी बीबी। यहाँ तो बड़ी डटाई के साथ फ्रंट सीट पे बेपर्दा औरत को बिठाया जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि हम पढ़ लिख गए, FSC और BSc हमारी तालीम है, हमारे पास अभी ताजी तो कार आई है, तो बताएं ना कि जो कार पे बैठी है वो कार की मालकन है। यहाँ तो हर चीज खोल के बयान करना लोगों ने अपने लिए जरूरी समझ लिया है, अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। खुदारा फाशी के खिलाफ, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ उठो और इस पुल को बांधो। जब तक फाशी रहेगी, उरियानी रहेगी। पाकिस्तान में 10 के करीब बच्चों के साथ रोज ज्यादती होती है। ये आपके कौमी अखबारात की आज सुबह की रिपोर्ट है। ये तो वो चीजें हैं जो खुल के बाहर आ गई, और इसके अलावा जो बेहयाई के अड्डे खुले हुए हैं, न जाने उनकी तादाद कितनी, किस कदर ज्यादा जुल्म हो रहा है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जिना करता है तो ईमान उसके सीने से निकल जाता है उसके सीने से। आंखों पर पर्दा होना चाहिए, कानों पर पर्दा होना। और अगर ज़ैनब के कत्ल के बाद भी किसी के मोबाइल में गंदी तस्वीर है और उसके कत्ल के बाद भी बेहयाई के गाने उसके मोबाइल में हैं, तो फिर वो रस्म के आंसू ना बहाए, फिर वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आगे बढ़ के मरसिया खाना बने, वो फिर शायर और अदीब बनने की कोशिश ना करे, वो फिर अपने हिस्से का जुमला लगाकर अपने आप को फेसबुक पे एक्टिव रखने का तमाशा ना करे। क्या मतलब हुआ इन चीजों का? अगर अभी भी बुराई के खिलाफ नहीं उठना, बेहयाई और फाशी के खिलाफ नहीं उठना, मेरे अजीजों, आखिरी बात सुनना और इसको हमेशा याद रखना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी एक मुसलमान के कत्ल में अगर अहले जमीन, अहले आसमान सारे भी शरीक हो जाए, सारे, तो फरमाया हो सकता है अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। इसलिए कि जो कत्ल है ना, कत्ल एक है ज्यादती और एक है फिर उसके बाद कत्ल। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल, इतना बड़ा जुल्म। और यहाँ तो अब कत्ल की खबर आ जाए ना अखबार पे तो इतनी दिलचस्पी वाली रहती नहीं। इतने लोग कत्ल हो गए, कोई अर्ज नहीं। ये तो हमारे यहाँ तो किसी सियासतदान की शादी की खबर आएगी तो वो दिलचस्पी वाली होगी, उस पर तबसरे होंगे, कमेंट्स होंगे। एक बंदा मर गया, ठीक है, गरीब आदमी था, कत्ल हो गया, जान छूटी, माज़अल्लाह, उस पर कौन तवज्जो करता है? यहाँ तो इनके मेले छेले तमाशों पर लोग तबसरे करते हैं।
ये जो कोई नई एक्टिंग करके दिखाते हैं उस पर हमारी तवज्जो जाती है। इतनी औरतों ने खुदकुशी कर ली इसलिए कि शाम को खाना नहीं था, बच्चों समेत दरिया में कूद गई। ये होता रहता है, इसकी खैर है। माज़अल्लाह ये तो सारे जमाने में। ये देखो कि किसी सियासी लीडर ने कोई नई एक्टिंग की है तो उस पर तबसरा करते हैं, उस पर थोड़ी देर बैठते हैं। ओ खुदा के बंदो, अपनी तरजीहात बदलो। मैं कहा करता हूँ इनकी गाड़ियों के पीछे भागना छोड़ दोगे तो ये सही हो जाएंगे। इनकी जायज नाजायज चीजों पर नारे लगाने बंद कर दोगे तो ये सही हो जाएंगे। खुदारा ज़ैनब तो चली गई पर हमें एक पैगाम छोड़ के गई है कि फाशी के खिलाफ उठ खड़े हो। अब जुल्म के खिलाफ लड़ना सीखो। अब अपने अंदर ये ताकत पैदा करो। अब ताकत पैदा करो। हमें सारा पता होता है लेकिन इसके बावजूद हम जालिमों के साथ खड़े होकर उनकी तारीफें करते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, सपोर्टर वोटर बनते हैं। अब इस काम से बाज आ जाओ। खुदारा अब भी समझ जाओ। ऐ अल्लाह, जुमे के दिन इस इज्तिमा में तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। खुदावंदा सारी बेटियों को हिफाजत का पर्दा अता फरमा। अल्लाह सब के लिए हिफाजत के पर्दे नसीब फरमा। और मेरे मौला जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा। अल्लाह इन जालिमों को निशाने इबरत बना। खुदावंदा इन जालिमों को सफ़ाए हस्ती से ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह रहमत की बरखा बरसा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।